If you like minority community, introduce UCC, because today Muslim women are crying. One husband married four wives. How they coexist? Can you see the trauma of a Muslim girl when they have to live in that trauma? That my husband, if today my daughter is given to a boy and next day I realize that that boy has married second time, third time, fourth time, as a parent, what will be my agony? Now, if you really like minority community, ban that. Say that no, Muslim woman has a equal right to survive, equal right to flourish, will not allow you. Give the parental property right to Muslim women. Because if a Hindu daughter can have equal rights to parents' property, why not Muslim women? Give that. You do not want to give wholesome justice to the minority community. You want to appease them. Rather you want to appease their leaders. इससे क्या फायदा होता है स्टेट का? इससे तो फायदा कुछ भी नहीं होता है. तो मेरा सुबह इतना दुख लगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख के कि इट्स लुक्स लाइक प्रोबेबली जिन्ना भी आज जिंदा होता था ये सब मैनिफेस्टो में नहीं लिखता था मुस्लिम लीग का. तो नाउ दे आर बिकमिंग कम्युनल बिगर देन जिन्ना. दैट्स द प्रॉब्लम. भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा देश का चुनाव आ रहा है. कर्नाटक चुनाव का बाद ही हमारा देश का लोकसभा चुनाव आएगा. We are also setting tone and tenor for the Lok Sabha election. धीरे धीरे 2023 हमने आया हो. 2023 में there was a 3 election to the northeast state we own. Now Karnataka, year after Telangana, year after Rajasthan, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and then we are going to re-elect a government for central government, or we are going to have a re-election for our parliament. Now, you compare last 10 years. In spite of people telling everything, today India become 5th largest economy. In spite of telling everything, they say no, economy has gone down, banks are in a bad position. You said everything, but we become 5th largest economy. Nobody thought that India will have 5G technology with our indigenous technology without waiting for China. जब कोविड आए थे तो लोगों ने बोला था भारत को तो कुछ वैक्सीन मिलेगा नहीं. तो इंडिया इन्वेंटेड इट्स ओन वैक्सीन. जब वैक्सीन आया तो लोगों ने क्वेश्चन किया. पहले तो क्वेश्चन किया वैक्सीन ठीक है कि नहीं. बाद में सारे कांग्रेसी लोग लाइन में आगे जाके वैक्सीन लिया. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट फिर उन्होंने पूछा कि वैक्सीन है बट कैन इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड? वेयर इज योर कोल्ड चेन? आपका पास क्या कोल्ड चेन है? आप इतना टेम्परेचर में यू हैव टू टेक आउट द वैक्सीन. कैन इट बी देयर इन सियाचिन? कैन इट गो टू नॉर्थ ईस्ट? कैन इट गो टू द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ दिस कंट्री? आपने देखा कैसे वैक्सीन पूरा हिमालय तक पहुंचा, सियाचिन तक पहुंचा, तवांग तक पहुंचा, उत्तराखंड का पहाड़ में पहुंचा. धीरे धीरे आज 10 करोड़ वैक्सीन, काल 50 करोड़ वैक्सीन, काल 100 करोड़ वैक्सीन. वी गिवन वैक्सीन टू एवरीबॉडी. लोगों ने बोला कि क्या भारत का इकोनॉमी रिवाइव होगा? मैं एक छोटा प्रदेश में हूं, लेकिन इस बार मेरा ऑफिसर लोगों ने बोला कि कोविड का पहले जितना 2 व्हीलर सेल हुआ था, 4 व्हीलर सेल हुआ था, वी हैव क्रॉस दैट. वी आर बैक टू द नॉर्मल. मेरा गुवाहाटी एयरपोर्ट में मुझको बताया गया सर कोविड का समय जितना फ्लाइट चला वी गॉट बैक एवरीथिंग एंड रादर द नंबर इज नाउ इंक्रीज. टूरिज्म का बारे में बोला गया मुझको मेरा अधिकारी कि असम में टूरिस्ट इनफ्लो हैज इंक्रीज बाय 570%. The kind of the story, not 100%, it's 570%. So we got back to business quickly. पाकिस्तान का क्या हालत हुआ? एक साथ में दोनों कंट्री का जन्म हुआ. Now you see the situation there.
and how quickly we come back to normalcy. We got vaccine, we got our whatever treatment at that point of time was required, and you see that how nicely pandemic was handled. मोदी जी ने हमारा हौसला भी बना के रखा. He waged the war from the front. And जब लोगों का मन में था कि मोदी जी कौन सा वैक्सीन लेगा, खुद जाके आत्मनिर्भर वैक्सीन लगा के आया. तो दूसरा वैक्सीन उन्होंने नहीं लगाया. He could have imported a vaccine from America, but he has not done that. So मेरा हिसाब से this is the best part of our history, our journey, कि भाई हम एक बहुत ही एक प्रभावी समय काल खंड में हमें गुजर रहा हूं. आपको याद होगा जब सीनियर सिटीजन्स है, मेरा बहुत ज्यादा याद नहीं है बिकॉज आई एम 54, सो व्हेन आवर कंट्री एंटर्ड इनटू द 58 years, मेरा मालूम नहीं है हाउ इट वाज, बट जरूर हमें हमारा बीच में ही लोगों ने देखा होगा कि कंट्री का 75 साल डायरेक्टली नहीं हुआ, 50 साल से ही 75 साल हुआ. लेकिन जब 50 साल हुआ, हमें पूछा, किसी ने बोला था कि घर घर में तिरंगा लगाओ, तो किसी ने बोला था कि नेक्स्ट 25 years विल बी द अमृत काल. आप सोचने का तरीका देखिए. इट कुड हैव बीन अ बिग सेलिब्रेशन, बट मोदी जी ने बोला नहीं, सेलिब्रेशन तो करो लेकिन नेक्स्ट 25 साल का संकल्प भी करो कि हमारा देश को ग्लोबली नंबर 1 कंट्री बनाना है. तो टुडे इंडिया हैज एंटर्ड इनटू इट्स मोस्ट एक्साइटिंग पीरियड ऑफ आवर जर्नी. और मैं विश्वास करता हूं हमारा पास इकोनॉमी है, 3 नंबर 2 हम बनी रहा हूं, एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इमर्जिंग. Today, Government of India is talking about quantum physics, Government of India is talking about artificial intelligence, Government of India is talking about augmented reality. We are moving fast, rather faster than many advanced nations. This is a time to strengthen Prime Minister's hands so that we can transform this Amrit Kal into a really Amrit Kal for our nation. I don't think that मुझको बहुत बोलने का जरूरी है. You understood everything what I have trying to put my point. मैं 2 सब बोल के समाप्त करता हूँ. मैं उत्तर पूर्व से आते हैं. आज मैं मजाक में बोला हूँ कि हमारा घर में जब मैं घर में घुसता हूँ तब हम we call वास्तु एक्सपर्ट कि हमारा घर को ठीक देख लीजिए whether it is in compliance with वास्तु or not. जो लोग बिलीव करता है उनको मालूम है कि वास्तु वाले लोग हमेशा बोलता है भाई नॉर्थ ईस्ट को ठीक करके रखो बिकॉज दैट्स ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू योर होम. इसको क्लीन करके रखो तभी देश में घर में प्रॉस्पेरिटी होगा. मोदी जी ने बोला भाई नॉर्थ ईस्ट को ठीक करना है. पहले नॉर्थ ईस्ट वाज इन न्यूज फॉर वायलेंस, बॉम्ब ब्लास्ट, फायरिंग एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिविटी. कभी कभी मुझको मेरा बहुत शौक नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी मैं ज्योतिष वास्तु पढ़ता हूं तो लोग मुझको बोलते हैं कि भारत बहुत डेवलप हो जाता था अगर नॉर्थ ईस्ट में ब्लडशेड नहीं होता था. बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्री, फॉर ए होम टू मेक द नॉर्थ ईस्ट इन परफेक्ट शेप. मोदी जी ने मुझको जब मैंने मुख्यमंत्री बना, मोदी जी ने मुझको बुला के बोला कि हिमंत देखो नॉर्थ ईस्ट को हमें जल्दी ठीक करना है और ये भूखंड को ठीक करना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है. 2 साल हुआ और 2014 साल का बाद नॉर्थ ईस्ट का इतना तरक्की हुआ है. I not say that development is in sync with state like Karnataka. We are compared by only ourselves. But 2-3 historical data मैं आपको दे सकता हूँ. जब चाइना भारत में पहला बार 1962 में सी वेज वॉर अगेंस्ट द कंट्री, सी टुक अप तवांग कि मैं तवांग से ही घुसूंगा. सी एंटर्ड थ्रू अरुणाचल और
She came into the mainland of India, we call Tezpur. ये बहुत ही भूतल है, and from Tezpur, Siliguri, Calcutta is not far off. She came to that. क्यों आए? Because from China's core headquarters to India's border point, they need only 20 minutes. Good road, good electricity, good train, पट करके आ सकता है. और हमारा जो कोर हेडक्वार्टर था तेजपुर में, तेजपुर से हमें बॉर्डर देने के लिए we need 7 days of time. There was no reinforcement. If you Google it and you will see the Indo-China conflict 1962, you will see that Indian army could not send reinforcement at all. आज 70 years of independence हो गया, 2014 तक ऐसे रहा. Congress, this question was put to Congress government. They said no, border area we should not have developed because then enemy comes slowly. But where you will encounter enemy, you will encounter enemy from inside the country. It is not in any war advisory. I mean, जो भी आपने रणनीति पढ़ा है, you have to take your enemy at border. If you allow him to enter, then he will just keep on entering. आज थोड़ा दिन पहले तवांग में चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और we have registered a decisive victory. कारण क्या है? आज तवांग जाने के लिए you have 6-lane highway, अभी रेल लाइन भी बनना शुरू हो गया और हमें कोई तकलीफ नहीं है because you have all sorts of communication available. कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज द चेंज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. यह ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्थ ईस्ट में हुआ. आज नॉर्थ ईस्ट में डुअल ट्रैक का रेल लाइन बैठा. आज इलेक्ट्रिसिटी से रेल चलता है. सारे प्रदेश एंड पूरा टेरिटरी में 6 lanes हाईवे होता है. रिसेंटली वी हैव इनॉग्रेटेड एम्स. I represent from a small state, but we have decided to have one medical college in every district headquarters. We done 50. We already inaugurated 12 medical colleges, and by 2028 we will have the rest 12 also because all are in construction stage.